Good morning class. Today we are going to start with the new session for class 9 CBSE, that is the number system. Okay, and we are dealing with the exercise 1.3. Okay, and here we are given in the question number 3 0.6 bar, second 0.47 bar, and third one 0.001 bar. Okay, we have to express it in the form of P upon Q. Okay, we have to express this in the form of P upon Q. Now here, first thing, P upon Q means we have to show it as a rational number. We have to show it as a rational number. Clear cut meaning is that rational number. हमें पता है कि rational number को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? P upon Q, where Q is not equals to 0. Rational number का फॉर्म क्या होता है? Form of a rational number is equals to P upon Q, where Q is not equals to 0. जहां पर Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है. ओके, दिस वी नो वेरी वेल, ये हमें पता है. नाउ वन थिंग यू रिमेंबर, अब यहां पर आपके पास 0.6 बार है. ओके, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 0.6 बार. ओके, तो इसे फर्दर ऐसा लिखा जा सकता है x इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन. इसे आप इक्वेशन 1 बना सकते हो. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 0.6666 इक्वेशन 1. अब यहां पर देखो, ये आपका इक्वेशन 1 है, तो हम क्या करेंगे? वी विल बी मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन 1 बाय 10. वी विल बी मल्टीप्लाइंग टू इक्वेशन 1 बाय 10. तो आपके पास वो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग equation 1 by 10. We are going to multiply equation 1 by 10. So it will be x multiplied by 10 is equals to 0.666 and so on multiplied by 10. Multiplied by 10. So here it will be x into 10, 10x and 0.666 multiplied by 10. Okay. नाउ सारे नंबर 666 लेना पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम कुछ ही डिजिट लेते हैं. 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो. ओके, सो आई हैव टेकन 0.666, 3 डिजिट्स लिए मैंने आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ओके, तो यहाँ पर 10 into 6 दैट विल बी 60. नाउ 6 कैरी. ओके, 10 6 are 60 plus 6 66, 6 कैरी. देन 10 6 are 60 plus 6 66. आपका आंसर है 6.66. ओके, आपका जो नया इक्वेशन आया है वो है 10x इज इक्वल्स टू 6.66. ओके, ये आपका इक्वेशन 2. ना, ये आपका कितना हुआ? इक्वेशन नंबर 2 हुआ. अब इक्वेशन 2 और यहां पर देखो इक्वेशन 1 है. ओके, अब यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो. ओके, यहां इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. नाउ subtracting equation 1 from 2, we get 10x minus x is equals to 6.66 minus 0.66. okay, 10x minus x and 6.66 minus 0.66. okay, now 10x minus x will be 9x, then 6.66 minus 0.66, so this will be 0 0 0, this will be 6, so here it will be 6. Now 9 is in the multiplication, we are going to transpose on the right hand side. X is equals to 6 upon 9, so x is equals to 2 3s are, okay, sorry, 3 2s are and 3 3s are, so 2 by 3. Value of x is equals to 2 upon 3. Value of x is equals to 2 by 3. So x is equals to 2 upon 3. Fine. Now further, next we have 0.47 bar. We have 0.47 bar. 0.47 bar.
Okay, now further this can be written as 0.47777. तो इसे हम x is equals to 0.4777 and so on. This is our equation 1. Okay, यहाँ पर x is equals to 0.47 बार है, तो बार का मतलब है कि ये 7 जो है वो रिपीट होगा. 7 will be repeated again and again. So x is equals to 0.4777, equation 1. Now what we'll be doing? We will be multiplying equation 1 by 10. Multiplying equation 1 by 10. So it will be x into 10 is equals to 0.4777 into 10. So it will be 10x is equals to, it will be 10 sevens are 70, 7 carried, 10 sevens are 70 plus 7, 77, 7 carried, 10 sevens are 70 plus 7, 77, 7 carried, 10 fours are 40 plus 47, 10 fours are 40 plus 7, 47, so it will be 4.777. Okay, so 10x is equals to 4.777. This is your equation number 2. Now to this equation again you will be multiplying by 10. Okay, इस इक्वेशन को आप फिर से 10 से मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 10. नाउ यहां पर देखिए 10x multiplied by 10 and 4.777 multiplied by again 10. So it will be 100x. 10 sevens are 70, 7 carried. 10 sevens are 70 plus 7, 77. 10 sevens are 70 plus 7, 77. 7 carried. 10 fours are 40 plus 7, 47. 47.77. Okay, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हुआ. 100x is equals to 47.77. अब यहां पर आप देख सकते हो 100x is equals to 47.77. इक्वेशन 2 में आपके पास है 4.77 और इक्वेशन 1 में है x is equals to 0.477. तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3. ओके, तो यहां पर आपके पास आएगा 100x minus 10x is equals to 47.77 minus 4.77. Okay, so this will be 90x and 47 minus 4, this will be 43. 77 minus 77, this will be 0. So आपके पास 43 आया. ओके, इसके लिखने की जरूरत नहीं है. 43, तो x is equals to 43 upon 90. So your answer is 43 upon 90. So in this way we have represented this also in the form of p upon q. पहले वाले को भी हमने p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. ओके, नाउ थर्ड वन 0.001 बार, ये आप खुद के मन से ट्राई करिए. इसका आंसर आप फाइंड करिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए. ओके, ये बिल्कुल मैंने पहले दो जैसे किए हैं बिल्कुल उसी वे से इसको सॉल्व करना है. विद द सेम मेथड यू हैव टू सॉल्व. ओके, कोई भी मेथड चेंज नहीं करना है. इन द सेम मैनर यू हैव टू सॉल्व. नाउ फर्दर वी हैव टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4. Question 4. Express 0.999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? Okay. 0.999 you have to express in the form P upon Q. P upon Q के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है. Okay. Now 0.9 can be written as 0.9 bar. 0.9 bar. So this is further x is equals to 0.9 bar. So this can be written as 0.999 and so on.
ओके, इसे आप इक्वेशन 1 दे सकते हो, यू कैन गिव इट एज इक्वेशन 1. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10. इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी वे से करना है. सो x मल्टीप्लाइड बाय 10 and 0.999 multiplied by 10. So it will be you can take it as 10x, और ये आएगा आपके पास 10 9 जा 90, 0 here 9 कैरी, 10 9 जा 90 प्लस 9 99, 9 कैरी, 10 9 जा 90 प्लस 9 99, ओके, देन 9 कैरी, सो 9.9. So 10x is equals to 9.99. ये आपका इक्वेशन 2. Now what you will be doing? You will be subtracting equation 1 from 2. Subtracting equation 1 from 2. Okay. So यहाँ पर आएगा 10x minus x is equals to 9.99 minus 0.99. Okay, after subtraction you will be getting 10x minus x will be 9x, and 9.99 minus 0.99, this will become 9. So x is equals to 9 upon 9, so x is equals to 1 upon 1. So we are surprised by the answer, because here P and Q both are, P is equals to 1 and Q is also 1. So it is in the form 1 upon 1. So that's why we are surprised by the answer. Okay, 1 upon 1. Then next, question number 5. Okay, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Okay, perform and check your division. यहाँ पर 1 upon 17 है, तो उसे डिवाइड करके क्रॉस चेक करना है कि कितने डिजिट्स आते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक फैक्ट चेक करो आप. यहाँ पर आप फैक्ट चेक करो कि जब भी आप 1 अपॉन 17 होगा तो कितने नंबर्स आएंगे. तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बोलता हूं. जो भी ऊपर नंबर रहेगा और जो डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर में कितना है 17 है, तो इसके बाद डेसिमल में आपके पास 16 डिजिट्स आएंगे. यू विल बी हैविंग द 16 डिजिट्स इन द डेसिमल. आप डिवीजन करके क्रॉस चेक कर सकते हो. 1 को 17 से डिवाइड करिए तो आपको डेसिमल के बाद नियर अबाउट 16 डिजिट्स आएंगे. ओके, आप जब 1 को डिवाइड करोगे 17 से, डिवीजन में आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल के बाद नियर अबाउट 16 नंबर्स आएंगे. 16 नंबर्स के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसका आंसर कभी आएगा नहीं, रिकरिंग आएगा, लेकिन वो 16 डिजिट तक आएगा. बात समझ में आ रही है? यानी जैसे कि अब देखो यहाँ पर 10. ओके, देन दिस इज नॉट डिविजिबल, सो 0. यहाँ पर 100 हुआ, 17 5 जा 85, देन हियर अगेन 15, यहाँ पर 0 दिया, देन 17 8 जा इट विल बी 136, देन अगेन इट विल बी 14. इसको ऐसे ही कंटिन्यू करो. 8 जा 136, then again here it will be 4, then 0, 17 2 जा 34. इसको कंटिन्यू करो, आपको 16 डिजिट्स तक मिलेगा, और 16 डिजिट्स के बाद जो 17 डिजिट आएगा वो फिर से आपका 0 आएगा, यानी वो रिपीट होते जाएगा. तो आपने उसको बार के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, एंड एट द लास्ट यू विल बी राइटिंग देयरफॉर 16 डिजिट्स विल बी देयर. ओके, सो थैंक यू. दिस वाज टुडेज सेशन.